Good morning, student. Today I am going to start my new chapter, chapter 3. The name of chapter is Metal and Non-Metal, and for this chapter, that is the first video classes here in this chapter we are going to study about the metal and non-metal. As we know that till this time 118 element has been discovered. अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है. As we have studied in class 9th about various elements, we have seen that elements can be classified as a metal and non-metal on the basis of property. Property means physical property and chemical property. So first we are going to study about the metal on the classification of element into, as I have said that element has been classified into metal and non-metal. So first, on the basis of physical property, we are going to study about the metal. Following are the main, or we can say that following are the chief physical property of metal. First is metallic luster. Metal in pure form, they are shiny. It means metal have in pure state, they have shiny surface. For example, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो वे चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं. इट मीन्स दोज एलिमेंट हैविंग शाइनी सरफेस आर कॉल्ड मेटल. इट मीन्स मेटल containing the shiny property, this property is called metallic luster. Our aluminum, iron, copper, gold, silver, they have shiny surface and they are metallic luster. But one of the contradiction is that on one side I am saying that metals are metallic luster, but our iodine, which is non-metal which also containing the shiny property. So the classification of element into metal and non-metal on the basis of physical property is not correct. It showing the many contradiction. Another physical property is our hardness. Metals are generally hard. The atom of metals are closely packed. There is a strong intermolecular force holding between them. For example, iron, copper, aluminum are hard
वो कठोर होते हैं, बट आवर अल्कली मेटल लाइक lithium, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। अगर हम चाहें कि एल्युमिनियम के एक पतले वायर को लेकर के नाइफ से काटना चाहें तो वह नहीं कट पाता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। उसके लिए स्पेशल प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग एल्युमिनियम के तार को काट सकते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, उसे हम लोग चाकू से काट करके पीस में अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन वन साइड वी से दैट metals are hard, but we see that the some metals, our lithium, sodium, potassium are so soft they cut with knife, but our aluminum, copper, iron, wire are not cut with knife. It means if we want to cut the wire of aluminum, copper and iron, we cannot cut into piece by using the knife. The another property is that hardness, melting point and boiling point. The melting point and boiling point of metal are very high because the atom of, as we know that generally metals are found in solid state except mercury which is found in liquid state. सामान्यतः जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो चूँकि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उनके एटम जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द इंटर एटॉमिक फोर्स सो दैट दे कैन चेंज दियर फिजिकल स्टेट. दैट इज द रीज़न दैट द metal have high melting point and boiling point, but our gallium, cesium and gallium have low melting point because when we put them, cesium और गैलियम को जब हम लोग अपने हथेली पर रखते हैं तो वह मेल्ट कर जाता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को ही, बॉडी हीट को ही ले करके वह पिघल जाता है। तो यहाँ पर हम एक तरफ कह रहे हैं कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट आवर गैलियम एंड सीजियम मेल्ट्स आवर पाम व्हेन वी पुट इट ऑन आवर पाम। जब हम लोग अपने हथेली के ऊपर सीजियम और गैलियम को लेते हैं तो वह पिघल जाता है। तो दैट इज़ द अनदर कंट्राडिक्शन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट on the basis of physical property. On one side I am saying that the metal have high melting point and boiling point, but our gallium and cesium have low melting point. It melts our palm. When we put it on palm, it melts. So that is the contradiction which is arises in the classification of element on the basis of physical property. Another our physical property is density. The density of metal is high because the atoms of, generally metals are found in solid state, the atoms are closely packed and the volume of the overall volume decreases. As a result, density increases. As the density of iron is near about 9.1 gram per centimeter cube, while the density of
sodium is 0.9 gram per centimeter cube and the density of potassium is 0.8 gram per centimeter cube. Here we see that the density of sodium and potassium are lesser than water. सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी पानी से भी कम है. इट मीन्स आवर सोडियम एंड पोटेशियम इज लाइटर देन वाटर. दैट इज द रीजन दैट दे फ्लोट ऑन द surface of water. Another thing is our thermal conductivity. मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. इसके लिए आप NCERT के बुक पेज नंबर 38 में डायग्राम नंबर 3.1 है, वहाँ पर देखेंगे कि एक आयरन स्टैंड क्लैंप से एक कॉपर वायर को अटैच किया गया है और कॉपर वायर के दूसरे छोर पर मोम के सहारे पिन को हम लोग अटैच कर देते हैं और फ्री इंड जो कॉपर का राइट साइड में जो इंड है उससे वैक्स के मदद से पिन को अटैच कर देते हैं और लेफ़्ट साइड में जहाँ पर क्लैंप से कॉपर वायर अटैच है वहाँ ठीक बगल से स्प्लिट लैंप से गर्म करते हैं. कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्री इंड पर जो वैक्स था वो मेल्ट कर गया और मेल्ट करके वहाँ से आयरन पिन जो है वो नीचे गिर गया. इट मीन्स द सॉलिड में जो है हीट का ट्रांसमिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. चूँकि उसके एटम जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, एक एटम दूसरे एटम को हीट को ट्रांसफ़र करता है, इस तरह से वो फ्री इंड की तरफ पहुंच जाता है और वैक्स पिघल जाता है और जो है वो क्या कहते हैं पिन जो है उससे पुनः उससे गिर जाता है. द 6th प्रॉपर्टी इज आवर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम लोग जो है पेज नंबर 39 डायग्राम नंबर 32 जिसमें हम लोग एक सर्किट होता है जिसमें कि एक बैटरी होता है, बैटरी से एक बल्ब जुड़ा होता है, की होता है और उसका दोनों फ्री इंड जो होता है वो आपको ओपन होता है क्लिप के जैसा. और उस क्लिप वाले खाली जगह में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक आयरन नेल के कांटी को आयरन नेल को ले आकर के बीच दोनों पिन के दोनों क्लिप के बीच में डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि उससे वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही हम लोग की को प्रेस करते हैं बल्ब जल उठता है. इट मीन्स मेटल में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. हम लोग इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए हम लोग कॉपर मेटल, एल्युमिनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आवर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आवर सिल्वर मेटल. सो सिल्वर मेटल है तो सिल्वर मेटल का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वायर बनाने के लिए, लेकिन चूँकि वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसलिए हम लोग जो है सिल्वर के वायर का इस्तेमाल सिल्वर मेटल का उपयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में नहीं करते हैं. वो एक्सपेंसिव है, महंगा है. हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल वायर में सामान्यतः कॉपर और एल्युमिनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी इज आवर सोनोरोसिटी मीन्स आवर मेटल प्रोवाइड्स रिंगिंग साउंड. जब हम लोग मेटल के ऊपर मेटेलिक सीट के ऊपर हम लोग हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो उससे गूंजने वाला रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है विच आर फाउंड इन आवर मेटल. सो दैट इज़ द रीज़न दैट द स्कूल बेल इज मेड ऑफ मेटल है ना. यही वजह है कि स्कूल की विद्यालय की घंटी जो है वो मेटल की बनाई जाती है. तो हियर
sonorosity, it means metal have ability to provide ringing sound, that is this property is sonorosity, and these metals have ability metals are containing the property of sonorous. It means that metal have ability to provide ringing sound. Another our property is our malleability. लास्ट है डक्टिलिटी. When suppose that we take piece of iron, aluminium and copper, जब आयरन और एल्युमिनियम और कॉपर के 3 टुकड़े को लेकर के हम लोग हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो चदरे में कन्वर्ट हो जाता है, थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैलिएबिलिटी जो है ये मेटल में प्रॉपर्टी पाई जाती है. मेटल कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू थीन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. आवर सिल्वर एंड गोल्ड आर most malleable metal. Our gold is most malleable metal. Another last physical property is our ductility. Ductility is the conversion of metal into thin wire. मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं. कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू थीन वायर इज सेड टू बी ductility. Our most ductile metal is our silver and gold are ductile, most ductile metal, but our gold is between the silver and gold, our gold is most ductile metal, because our just from 1 gram gold we can draw the 2 kilometer long wire. That is the reason that the gold is said to be most ductile metal. So today our video class is going to finished. So these are the physical property of metal, and now in the next class I shall discuss about the chemical property of metal. Now thank you, धन्यवाद, bye bye.